Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Harjot, Yadvinder, Gurpangul, Vikram, Harshita, Arshi, Abhijot, Harleen, Palak, and Navneet. Good afternoon, everyone. We are going to read chapter 1, Nationalism in Europe. Okay, chalo. So let me tell you what we have done yesterday. We have done Romanticism. Romanticism means culture. Whenever we are talking about Romanticism, we are talking about culture and language. Their ethnic groups, how they played important role. Yesterday you got this kind of thing that every time wars are not enough. Sometimes culture, language, or folk culture, folklore, or music, art, these kinds of things, poems, etc., also play an important role for the nationalism. इन चीजों से भी nationalism आता है. Okay, now open your book, page number 15. The emphasis on vernacular language. What is vernacular language? Let me ask from Vikram. Vikram, unmute kar. Vikram, what is vernacular language? Vikram, unmute karna. What is vernacular language? नहीं पता? अरे तो एक स्माइली कर दे, मेरे को समझ ही नहीं आ रही तेरे को सुनाई दे रहा है कि नहीं. चलो, हरजोत, unmute yourself. What is vernacular language? Good afternoon, ma'am. Good Ma'am, afternoon. vernacular language means the local language of the people. हाँ जी, please write down its meaning, beta. Vernacular means local language. Many times even your teachers are also saying that na better don't use vernacular language, means Hindi, Punjabi you will not use. You will use only and only English language. So no vernacular language. But here they are putting stress on using of vernacular language. Because according to them, they used to say that what is the fun of using Spanish and French language if the people are unable to understood the topic. अब मैं यहाँ आपको फ्रेंच में पढ़ाऊँ, 45 मिनट्स की क्लास हो तो ब्लैंक ही आओगे, ब्लैंक ही जाओगे. So when we use our local language, it means you are very comfortable with that. ठीक है. अब वर्नाकुलर लैंग्वेज लोग उससे जुड़े हुए थे. अब जितनी अच्छी आप पंजाबी बोल लेते हो उतनी अच्छी शायद आप फ्रेंच नहीं बोल पाते हो. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का ये फायदा है. Now they are putting stress on neither they are putting stress on Polish language or French language or Spanish language or Magyar language. They are putting stress on local language. ठीक है. अब लोकल लैंग्वेज में हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है. फ्रेंच में लिखी हुई बुक को स्टोरी कितनी भी अच्छी हो बट आपका मन नहीं करेगा. हिंदी में जब हम पढ़ते हैं ना, पहली लाइन ऐसी होती है, फर्स्ट लाइन, एक घने जंगल में एक शेर रहता था. बस वो पहली लाइन पढ़ के ही मन करता है और पढ़ने को, है ना. तो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज. नाउ शो मी थम्स अप इफ प्लेटफॉर्म क्लियर टू यू, देन आई विल स्टार्ट टीचिंग. चलो ठीक है, थैंक यू. हरलीन तो पता नहीं कहाँ उठ के चली गई, मैंने इनको शेर वाली कहानी भी सुना दी. आराधना बेटा कैमरा ऑन कर. चलो पलक स्टार्ट रीडिंग बेटा. द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. हाँ, जो इलिटरेट थे उनके लिए स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं था. Those people were very much aware about the local language, so they put stress on the local language. तो उनके लिए folklore लिखे गए, उनके लिए ऐसी किताबें छापी गई जिनके साथ they are more comfortable rather than attaching with the French language or Polish language. ठीक है. तो ऑडियंस को अपने साथ अटैच करने के लिए खास करके जो इलिटरेट पीपल पलक ने पढ़ा है उनके लिए लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बुक्स लिखी गई. हाँ जी पलक.
अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट। This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Persia, and Austria. ये खास करके पोलैंड के केस में हुआ, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था। ये तीनों बढ़िया बढ़िया पावरफुल देश, ऑस्ट्रिया, पर्शिया एंड रशिया। हाँ हर्षिता, यस बेटा, वांट टू से समथिंग? Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, can you repeat the explanation of first 3 lines once again? हाँ जी, फर्स्ट लाइन में कहा है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज की ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, फॉकलोर के लिए एंशिएंट कल्चर और एंशिएंट लैंग्वेज को ज्यादा स्ट्रेस दिया गया, सो दैट इलिटरेट पीपल कुड आल्सो रिकॉग्नाइज, उनको भी समझ आ सके। सेकंड थिंग इसने पढ़ी है पलक ने, ऐसा ही पोलैंड के केस में हुआ, जिसमें कि पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से ग्रेट पावर्स की वजह से, 3 ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। यस बेटा। यस पलक, अनम्यूट बेटा। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. यस, लैंग्वेज के जरिए और म्यूजिक के जरिए ये फीलिंग को याद रखा गया। मैंने आपको बोला था ना, आर्ट भी प्ले करता है रोल बहुत बढ़िया फॉर द नेशनलिज्म, इन द सेम सेंस म्यूजिक आल्सो। नाउ पलक इज गोइंग टू रीड वन फेमस नेम, दैट इज कैरल कोरपेंस्की। Carol Korpensky was a wonderful, you can say, musician, right? He organized operas. तो म्यूजिक के जरिए लोगों में नेशनलिज्म डाला उसने। यस नवनीत, वांट टू से समथिंग बेटा? Ma'am, your voice is again and again cracking and I am not able. Okay, but here internet okay. But here तो Ma'am, my poor because I'm not at my home. I'm out of. you have to manage na this, so you have to manage. How can I come to your home and manage? I can manage my this classroom, so please manage, otherwise close the door close, curtain close कर दो, so that voice ठीक आए आपको। हाँ जी पलक, कंटिन्यू बेटा। Carol Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polonais and Mazurka into nationalist symbols. बेटा ये उनके डांस है, जैसे हमारा गिद्दा भांगड़ा डांस होता है, कुचिपुड़ी डांस होता है, ये उधर यूरोप की बात हुई है, पोलोनेज एंड मजुरका। बेटा यहाँ लिख लो इसका अंडरलाइन करके, टाइप्स ऑफ डांसेस। जैसे आपने पहले एक मागियार वर्ड पढ़ा था, तो आपने लिखा था टाइप ऑफ लैंग्वेज। दीज 2 टाइप्स आर डांसेस। गिद्दा भंगड़ा कुछ ऐसे गानों पे हो जिसमें पंजाबी का टच हो, इवन दैट लिरिक्स बेस्ड ऑन योर पंजाबी लैंग्वेज और योर पंजाब और योर ट्रेडिशंस। आप पंजाबी पढ़ते हो तो वो ज्यादा अटैच हो जाते हैं उनके साथ। इन द सेम सेंस कैरल कोरपेंस्की लॉन्च्ड ओपेराज, म्यूजिक, दीज काइंड्स ऑफ फोक डांसेस लाइक मजूरका, ये ऑर्गेनाइज करके लोगों को डांस के जरिए नेशनलिज्म डालना उन्होंने। डांस के जरिए भी नेशनलिज्म आता है। ओके हाँ जी। नाउ आराधना, अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, जहां से आराधना पढ़ रही है ना, उसके पहले एक क्वेश्चन लिखो। हेयर, जो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, कैन यू सी, स्क्रीन में दिखा रही हूँ, यहाँ लिखो डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन कॉपी, ऑन बुक। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज in developing, describe the role of language in developing nationalist sentiments. In developing nationalist sentiments. चलो अब जहां से
आराधना पढ़ेगी, ध्यान से सुनना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, हाँ जी बेटा, चलो आराधना शुरू करो बेटा। Language too played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools, and the Russian language was imposed everywhere. चलो In अब 1831, वेट बेटा, रुक जाया करो हर 2 लाइन पर। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद क्योंकि पॉलिश लैंग्वेज खत्म हो गई और रशिया का रूल ओवर हो गया, तो सब जगह पर रशियन लैंग्वेज आ गई। पॉलिश लैंग्वेज वाज डिलीटेड फ्रॉम द स्कूल्स। यस आराधना। in 1831, an armed revolution against the Russian rule took place, which was un- uh, अल्टीमेट ultimately crushed. Following this, many members of the clergy Poland began to use language as a weapon of national resistance. The Polish was used वेट वेट वेट, हाँ जी, अभी आराधना ने ये लाइन पढ़ी है और इसका मीनिंग ये है कि रशियन लैंग्वेज इज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ना 1831 आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। ठीक है, एक रिबेलियन हो गया एंड which was ultimately crushed. Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. जानबूझकर Polish language use करनी शुरू कर दी। Polish language was used as a diplomacy ताकि बाकियों को समझ ना आए, and it was supposed to be as the status symbol. So they started using Polish language. Now Polish language only for the higher people, but otherwise people will use Russian language. हाँ जी राधा। आराधना अनम्यूट कर। Polish was used for church gatherings and all the religious instruction. As a result, a large number of the priests and the bishops were put in the jail or went to Siberian by the बेल Russian. कहाँ लिखा आराधना, बेल कहाँ लिखा? मैम ये मैम लाइन दोबारा। बुक अच्छा, मैं समझ गई। न्यू बुक है तो वो फोल्ड हुई है, जैसे दिख नहीं रहा। वहां है सेंट साइबेरिया। क्लर्जी को, बिशप को, जो चर्च के फादर होते हैं, उनको जेल भेज दिया गया साइबेरिया। by the Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russia. अब क्योंकि The use of Polish नहीं करते थे, आराधना भी हमारी खोई रहती है। जब म्यूट करना होता है तो अनम्यूट करती है, अनम्यूट करना होता है तो म्यूट करती है। ठीक है, तो जितने क्लर्जीमैन थे, बिशप थे, फादर थे चर्च के, उनको बोला गया कि आप पॉलिश नहीं यूज करोगे, बट दे पीपल यूज टू फॉर दिस लैंग्वेज पॉलिश। तो एंड में क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि रशिया का दबदबा था, सो दे पीपल पुट दीज क्लर्जी एंड बिशप्स एंड चर्च फादर प्रीस्ट सेंट टू साइबेरिया, और वहां पर जेल में रखा इनको। इट मीन्स उनके कहने का मतलब था कि पूरे यहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज होगी। यस, हाँ जी आराधना कंटिन्यू। The use of Polish came to be seen as symbol of struggle against the Russian dominance. हाँ, जो इसका यूज कर रहा था, इसका मतलब वो रशियन डोमिनेंस के विरोध में था। तो लड़ाई चली थी पॉलिश और रशियन की, बट दे पीपल वर पुटिंग स्ट्रेस ऑन द लोकल लैंग्वेज। आप ऊपर वाले पैरा से भी 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन। Then make 5 points from this paragraph. Now this time Rita ma'am is not helping you for making 5 points. You will do yourself. Appropriate heading भी वहीं से निकालनी है, ठीक है? And you will not write this question on copy. Just revise from book. चलो अभिजीत स्टार्ट बेटा। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अच्छा पहले मुझे अभिजीत बता, हंगर क्या होता है? मैम हंगर भूख। हाँ, हार्डशिप क्या होता है?
Hardship, ma'am. मीनिंग लिखो हार्डशिप का, डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम। पॉपुलर रिवोल्ट तो समझते ही हो आप, बार बार रिवोल्ट होने शुरू हो गए, है ना। काफी साल तक यूरोप में रिवोल्ट चला था, मतलब दिस इज वर्ल्ड फेमस रिवोल्ट्स ऑफ यूरोप, वर्ल्ड फेमस ही थे। सो दैट्स व्हाई दे हैव पुट दिस चैप्टर इन द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर ग्रेड 10। पॉपुलर ना होते तो नहीं डालते वो, है ना। अब आने वाले बच्चे तो एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोरोना वायरस का, आने वाले बच्चे तो और बड़ा बड़ा कुछ पढ़ने वाले हैं, मैनी मोर चैप्टर्स विल बी एडेड। तो यहाँ तो हमने यूरोप का इतना बड़ा वो देखा रिवोल्ट, तो फिर बच्चों को भी बताया हमने। पर देख ले अभिजीत को हार्डशिप नहीं पता, सोचो जो हार्डशिप उन लोगों ने फेस करी है। अब आप आगे पढ़ोगे, हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट 1830s, 1832 1848, 18 साल तक बहुत डिफिकल्ट टाइम था यूरोप में। Now we are discussing about 1830s and 1848. Yes, Abhijit, continue beta. 1830s. In 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. चलो, पहला कारण तो यही जिम्मेवार था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको पता जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम्स वही आती हैं, लाइक चाइना एंड इंडिया। जापान की पॉपुलेशन कम है, जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है वो कंट्रीज उतने ज्यादा बढ़िया बन पाती हैं। Now here in first line they have written in 1830s. 1830s, ये S क्यों लिखा साथ में? See, they have written S. ये क्यों लिखा बोर्ड पे बता रही हूँ मैं आपको। They have written like this ना? What is the meaning of this S? Raise your hands those who know. अभिजोत. Only अभिजोत knows. हाँ अभिजोत, बेटा ये क्या होता है? इसका मतलब S. Ma'am, if it was 1830, then it will be the year 1830, but it is written as that. It means that it is also after 1830's time. Till 12th decade. 1831, 1832, 33, so on 39, यानी कि पूरे 10 साल। तो सारा 1830 याद रखना आप हमेशा, ओके। 1830, 31 to 39। अगर होता 1840 तो 41 to 49, those 10 years। ठीक है, चलो नाउ कंटिन्यू अभिजीत। यस बेटा अभिजीत, कंटिन्यू। In most countries, there were more seekers of jobs than employment. हाँ, मोर सीकर्स ऑफ Population जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का ऐसा हाल था कि जॉब कम थी, जॉब लेने वाले ज्यादा थे। सो सेकंड रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, यू नो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक कर्स फॉर द नॉट डेवलपिंग अ नेशन। सबसे पहला कारण जिम्मेवार है जो नौकरी करना चाहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। हाँ जी अभिजीत, नेक्स्ट थर्ड रीजन पढ़ो बेटा। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. चलो, सारे के सारे लोग बॉम्बे भाग रहे हैं, सारे के सारे लोग दुबई भाग रहे हैं, सारे के सारे लोग चंडीगढ़ भाग रहे हैं, सारे के सारे लोग अमेरिका कनाडा भाग रहे हैं। So what will be the effect? That area will be overcrowded. So then this will be the third problem of difficulties and hardship. Yes, Abhijit. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. इंग्लैंड ने तो किसी को भी जीने नहीं दिया ना, इंग्लैंड ने तो किसी को भी, किसी कंट्री को भी जीने नहीं दिया ना, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सो मेनी इंडस्ट्रीज वर सेट अप एंड द मार्केट वाज फ्लडेड विद द मशीन मेड गुड्स एंड हैंडमेड गुड नेवर compete with the machine made good। तो जो हैंडमेड थे, जो घर में बैठ कर अपना सामान बनाते थे, काम करते थे, दे गॉन, उनका बिजनेस ठप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गॉन।
So why, how the people could be happy? So this is the fourth reason that country was in hardship. हाँ जी बेटा, अभिजीत continue. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops, and was only partly machinized. ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हाथ से बनाने वाली चीजों को, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि बाजार से बनी चीजें ज्यादा सस्ती और बढ़िया होती थी, तो वाई टू मेड विद आवर हैंड्स, इतना मेहनत करके क्या फायदा फिर? तो पीपल प्रेफर बाइंग दोज थिंग्स. नाउ सी, वी पीपल आर परचेजिंग चाइनीज मटेरियल. अब चाइना का सामान देखो कितना सस्ता है और बढ़िया भी है. अब हमें चाइना पसंद नहीं है, बट चाइना का सामान हमें पसंद है. सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बिकते हैं चाइनीज मोबाइल एंड चाइनीज टॉयज. एप्पल का फोन खोलेंगे ना तो उसके अंदर भी जो पार्ट्स है ना, वहां लिखा मेड इन चाइना. टॉयज छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ले लो, वो मेड इन चाइना. नहीं छोड़ पाते हैं हम चाइना को, क्योंकि वहां पर चीजें जो बनती हैं वो इतनी सस्ती पड़ती हैं कि आर थिंग्स नेवर compete with the Chinese made goods. अब एक छोटा सा टॉय है 50 रुपए का, ठीक है, बच्चे के लिए लेते हैं हम, छोटे से बच्चे के लिए. उसमें उसको डोरी खींच के चलता हो, ठीक है, डोरी खींची, वो जूम करके चला, उसमें से लाइट भी निकली, गोल गोल घूम रही है, उसमें से साउंड भी निकली, और वो गिर जाए तो खराब भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है. उसको दोबारा उसको पकड़ के उसको फिर से डोरी खींच के चलाओ या चाबी देके चलाओ तो फिर से चल पड़ता है. 50 रुपए में 3 फंक्शन दे रहा है और बच्चा हमारा खुश है. Now tell me, can we make these kind of goods in India? Never. अगर हम बनाएंगे ना, बना हम भी सकते हैं, अगर हम बनाएंगे ना तो then what will be the effect? इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना कि वो 50 रुपए का टॉय हमें 300 में पड़ेगा. तो we can't neglect China. हम चाइना को नहीं, अब देखो चाइना, अब सारी दुनिया जानती है कि वायरस किसकी वजह से आया, ठीक है. मैं हरजोत से क्यों पूछूं, मैं विक्रम से क्यों पूछूं, यादवीर से क्यों पूछूं, है ना. बट फिर भी 1 साल हो गया, चाइना का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया. हालांकि यहाँ तक सुनने को मिला कि जो चाइनीज मास्क आए हैं वो भी नकली हैं, यूज्ड हैं. Then people boycotted China's made good. Even some of the other countries were also suspecting the same thing. So then our Prime Minister, India's Prime Minister, Mr. Modi declared vocal for local. ये नारा दिया था, boycott the foreign goods, go for local. अपनी चीज खरीदो, है ना, मास्क छोड़ ही दो. What they told us, Indian government told us not to wear mask. Instead of wearing mask, use a hanky or use a cotton clothes. Now many times we have seen that many of the people are wearing cotton clothes only. उन्होंने यहाँ इलास्टिक लगाई है, कॉटन क्लॉथ बांधा, बेटर है ना. हैंकी भी होता है तो वी कैन मेक ourselves or our mother can help it. So some of things are like that, we can't compete with the machine made goods. So this was another reason for hardship. हाँ जी, कंटिन्यू अभिजीत. अगली प्रॉब्लम भी पढ़ दे बेटा, 4 तो पढ़ लिया, अगली प्रॉब्लम भी पढ़ दे अभिजीत. यस. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligation. ठीक है, और भी देख लो जी, कहीं कहीं जगह पर अरिस्टोक्रेसी थी और जहां पर किंग और क्वीन थे वहां पर थर्ड स्टेट पीपल का बुरा हाल था. थर्ड स्टेट पर पीपल मतलब पीजेंट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट अभिजीत, कुछ रह गया तो वो भी पढ़ दो भाई, बुरा हाल ही है फिर. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in town and country. pauperism का मीनिंग लिखो, पावर्टी. Write down the meaning of pauperism. It means poverty. ओके, तो चलो जी, ये 6th कारण भी उसने पढ़ दिया. देश में बहुत गरीबी थी, खाने को नहीं मिलता था, ऊपर से फूड प्राइस और बढ़ गए और बैड हार्वेस्ट हो गई, किस्मत खराब, फसल पूरी खराब हो गई.
अच्छा, now 10D, tell me one thing. Yadvinder, unmute yourself. I don't know why he is laughing. No other student is laughing. Yadvinder, unmute yourself. Tell me the reason of laughing. हंस क्यों रहा है? तो पहले मुझे ये बता. मैं वो भाई तंग कर रहा है. हाँ भाई भाई तंग कर रहा है. अच्छा, उसको बोलो पीछे हट जाओ भाई, मेरी 10 है, हाँ बोर्ड क्लास है, मुझे पढ़ना है. ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स और पढ़ाना नहीं, बस. ठीक है. अच्छा, अब ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड इन माय क्लास. ठीक है. Raise your hands, those who will make points from here to all the students. मैं नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे अब मुझे इतना जानते हैं. क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया, आंसर खुद 5 पॉइंट बनाऊंगी. Now raise your hand, those who can make 5 points from here for the whole class, सारी क्लास के लिए. साफ साफ, और जो अभिजीत ने पढ़ा साफ साफ पॉइंट्स थे यहाँ पर, एक एक करके, बल्कि 5 नहीं आपको 6 मिल जाएंगे. क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, बट आंसर आर 6. हर जोड़ता है. एंड कुछ नहीं करना, हमने कॉपी पे नहीं लिखा. ओके, अभिजोत विल हेल्प, यादविंदर विल हेल्प, हर्षिता विल हेल्प, ओके, पलक विल हेल्प. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. अर्शिया विल हेल्प अस. ठीक है, हरलीन भी कर लेगी. यादवीर अनम्यूट योरसेल्फ. यादवीर से पूछे जरा, 5 पॉइंट बना देगा. यादवीर, पहले तो तू मुझे ये बता, लिटिल यू वर लेट इन क्लास, पर तुझे मैंने एंटर कर लिया. Yes. है ना. चलो, क्या हो गया, लेट हो गया. मैम वो बाहर गेस्ट आए थे, हम याद ही नहीं रहा था. चलो, क्लास है. हाउ इनोसेंट ही इज, गुड बॉय. अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. इट इज रिटन वेरी फर्स्ट टाइम, द 1830s वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. हाउ? हाईलाइट दिस लाइन और पीछे लिख दो हाउ. आखिर ऐसा क्या हुआ? हाउ? मेंशन द रीजन. इसके साथ ही लिखो, नॉट ऑन कॉपी, ऑन बुक ऑन. चलो, यादवीर, टेल मी ओनली हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग बता दे मुझे, डोंट टेल मी द होल लाइन, बस 5 हिंट बता दे मुझे. ठीक है. हाँ जी, हम ऑल पॉइंट्स की हेडिंग की. हाँ जी. देख मेरे सामने बुक है ना, देख मैं कैसे पॉइंट्स बनाती हूँ. ये मेरे सामने बुक है, ये देख मेरे सामने पैराग्राफ है, इसमें से 5 मेन बातें मैंने निकाल के फटाफट आपको हेडिंग बना देंगे. नाउ आई वांट टू सी यू पीपल लाइक दिस. पूरा साल हमने इकट्ठे पढ़ना है, फटाफट 5 पॉइंट आपने निकालेंगे. यादवीर हेल्प कर, जहां से दिक्कत आएगी मैं हेल्प करूंगी बेटा. मैम इंक्रीज इन पॉपुलेशन. वेरी गुड. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मेक इट नंबर 1. वेरी गुड. Abhijit, tell me the second one. Yes, ma'am. Tell me the Ma'am, second. unemployment. Yes, unemployment. Very good. I'm proud of you. This will be the second one. Shabash. Harshita, third one. Harshita, unmute yourself. Tell me the third one. Yes, ma'am. Tell me the third one. Immediately नजर जानी चाहिए उसी पॉइंट पे. अभिजीत का अगले वाले लाइन, जो अभिजीत ने पढ़ दी उससे आगे वाली लाइन. Ma'am, overcrowded slums. Overcrowded slum. This will be the third one. Thank you बेटा. यादविंदर, फोर्थ वन, फटाफट पढ़ दे बेटा. कहाँ तेरी नजर गई? फोर्थ वन. यादविंदर, फोर्थ. Tell me heading only. Small producers. Stiff competition. स्मॉल प्रोड्यूसर नहीं, वो सूटेबल नहीं है. अप्रोप्रिएट हेडिंग बनानी होती ना, तो दैट विल बी स्टिफ कंपटीशन. चलो हरजोत, अनम्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट. जस्ट टेल मी द हेडिंग ओनली फॉर द फोर्थ वन. फॉर द फिफ्थ वन, फोर्थ यादविंदर है टोल्ड. Yes, ma'am. हाँ जी. Ma'am, fifth can be struggle of peasants or burden of feudal dues. इतना छोटा छोटा क्या उसको.
हाँ, पर उससे पहले भी तो एक बन सकता है। मैम वो उसमें नहीं आ जाएगा स्टिफ कंपटीशन में, क्योंकि वो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन वगैरह के बारे में ही है। नहीं, मेरी बात सुन, स्मॉल प्रोड्यूसर वाली बात आ जाएगी स्टिफ कंपटीशन में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली बात चलो उसमें डाल सकते हो, हाँ वो उसी में आ जाएगी। Yes. चलो फिर अगला 28 पीजेंट स्ट्रगल्ड वाला। हाँ इतना ही करो फिर, पीस एंड स्ट्रगल, बस पीस एंड स्ट्रगल। यस हाँ जी हरलीन, अनम्यूट योरसेल्फ, अगला बता दे मुझे। मैम वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म आ सकता है? हाँ जी, वाइड स्प्रेड पेपरिज्म, वेरी गुड। तो इसमें लिखना पड़ेगा वाइड स्प्रेड पेपरिज्म क्यों था, पावर्टी क्यों आ गई। हाँ जी विक्रम, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नेक्स्ट हो सकता है बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट या राइज ऑफ फूड प्राइसेस। मेरा ख्याल 7 बन गए, जबकि आपको करने 5 ही हैं। ओके चलो, टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद यू दैट यू कैन मेक 5 पॉइंट्स। अगर मैं नहीं भी बनाऊं तो आप बना लोगे, ठीक है। चलो अभिजोत, अनम्यूट योरसेल्फ। 1848, द ईयर ऑफ 1848। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखो। नाउ सी, यू कैन सी द स्पेस हियर, मैंने लिखा भी हुआ है ना, आपको दिख रहा है जहां से अभिजोत पड़ेगा, इसके साथ लिखो why the year 1848 was important। बुक पे लिखो why the year 1848 was important। बड़ा खराब साल था यूरोप के इतिहास में, बहुत कुछ हो गया। आपको पता, जिस घर में गरीबी होती है ना, पैसे की कमी होती है, फाइट्स भी वही होती हैं। पैसा कम होना लड़ाई की पहली वजह होती है। तो यहाँ पैसा बहुत कम है, गरीब बहुत है। कब तक लोग बर्दाश्त करते हैं, है ना। अब ये 2 महीने हमारे लॉकडाउन रहा ना, 2 महीने कहती हूँ, हाँ 2 महीने पूरा रहा लॉकडाउन, 2-2.5 महीने है ना, जब हम घरों में बैठे रहे हैं, है ना। तो some of the people were very much fed up with this kind of condition which was prevailing in the country। और कुछ नहीं तो वो सड़कों पे उतर आए, हद हो गई कि कुछ नहीं है, करो ना, बंद करो ये सब, और सब कुछ वैसे ही वर्किंग कंडीशन में हो जाए, क्योंकि वो तंग आ गए थे। इवन मेनी अदर कंट्रीज दे डिड सो, ऐसा हो रहा था, है ना। तो 1848 में भी कुछ खास हुआ, अभिजोत पड़ेगा अभी कि 1848 में ऐसा क्या हुआ कि पीपल की हद हो गई। एंड व्हाट दे डिड इन पेरिस, फिर पेरिस में उन्होंने क्या करा। चलो अभिजोत शुरू करो बेटा। इन 1830s, द ईयर 1848। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. चलो जी, पेरिस की सड़कों पर पूरे लोग बाहर आ गए 1848 में, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए गरीबी को। हाँ जी, Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. सारे के सारे बैरिकेड्स जो और लगे नैच- थे, जो बैरियर्स लगे थे, वो तोड़ दिए गए और लुइस फिलिप को भागना पड़ा। लुइस फिलिप वाज द किंग एट दैट टाइम। फ्ली, फ्ली लिखा ना, FEE, फ्ली। फ्ली का मीनिंग लिखो, रैन अवे, भागना पड़ा, वो डर गया। पलक लिख ले मीनिंग फ्ली का, FLEE। तो मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है पलक, तो ईच एंड एवरी फेस इज वेरी मच क्लियर टू यू। चल अभिजोत आगे, फिर उसके बाद क्या हुआ, लुइस फिलिप तो भाग गया। हाँ जी, A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 के ऊपर सबको सफरेज मिलेगा, नेशनल असेंबली ने ये बोल दिया। एंड गारंटीड राइट टू वर्क, सबको काम मिलेगा। अच्छा, राइट टू वर्क क्या होता है अभिजोत? 1 मिनट, मैं तो बीच में ही शुरू हो जाती हूँ ना, एक लाइन ऐसी आ जाती है तो इसको एक्सप्लेन करने में ही चली जाती हूँ मैं। आप तंग तो नहीं होते हो? हाँ, कैसे हो गए, आप ही का फायदा बता रही हूँ मैं। है ना। हाँ अभिजीत, अनम्यूट कर। Yes, ma'am. यू रेज्ड हैंड। Ma'am, right to work वाला आंसर। Ma'am, it is the right to work वाला आंसर मैम आपने पूछा। It is a right given to everyone above 21
that they can earn by doing work. अच्छा, और अगर Everyone has equal opportunity for work. ठीक है, अगर तुझे काम ना मिले फिर क्या करेगा तू? राइट टू वर्क तो वही है ना, सबको काम मिलेगा, मेरा हक है कि मुझे काम मिले, मैं MA BEd हूँ, ये मेरा हक है कि मुझे जॉब मिले। और अगर जॉब नहीं मिलती है देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हरजोत, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? The government would be responsible for that. Government will be responsible for that. तो what is according to right to work? हरजोत, फिर right to work क्या हुआ? मैम फिर राइट टू वर्क हुआ कि सबको जॉब फैसिलिटीज मिले, और अगर उनको नहीं मिलेंगी तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर सरकार उनको जॉब दिलाएगी। आपको पता, आप इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज मनरेगा, एम आई राइट? 9th में भी पढ़ा था, शायद वो गांधी जी ने चलाया था। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू इट? थोड़ा इकोनॉमिक्स ही पढ़ा देती हूँ मैं आपको। हरजोत, इसमें क्या था? नरेगा था, नरेगा हाँ मैम 2005 में ये पॉलिसी थी, और इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी रूरल नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसमें था कि सब हाउस होल्ड्स को 100 डेज ऑफ वर्क मिलेगा। यस, ये मैं कहना चाहती थी, वेरी गुड, यही मैं कहना चाहती थी कि मनरेगा क्या था। इसका मतलब महात्मा गांधी, MG, उसके बाद MGNREGA, फुल फॉर्म आई डोंट नो, आई थिंक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो सबको गारंटी है काम करने की, जो लोगों को काम नहीं मिलेगा सरकार दिलाएगी। 100 दिन का काम, 100 डेज मस्ट। अगर फिर भी नहीं काम मिलता तो फ्री के पैसे मिलेंगे लोगों को, ये मेरा हक है। आप समझते हो? ऐसे के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी है। आपको पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जालंधर में, लुधियाना में, अमृतसर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इसका मतलब जब मैंने BEd करी, मैंने BA करी, जॉब नहीं मिली, मैंने तो पढ़ाई करी ना, लाखों रुपया लगा के पढ़ाई करी, तो इट मीन्स मुझे जब जॉब नहीं मिली देन आई विल गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अपना नाम लिखवाऊंगी। नाम तो चलो बेरोजगारों में लिखवाना, इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है वो, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट में अपना नाम लिखवाना, बट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हरजोत ने बिल्कुल सही कहा, जॉब मुझे दिलवाना सरकार का काम है। जब भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी तो सबसे पहले दे विल कॉल मी, फिर मेरा इंटरव्यू होगा और मुझे जॉब दी जाएगी। अगर मुझे फिर भी 3 साल तक जॉब नहीं मिलती है देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव मी अलाउंस। अलाउंस समझते हो? गुजारे के लिए पैसे सरकार देती है, कुछ 500 समथिंग के, कुछ 600 समथिंग फिर मिलता है। दिस इज कॉल्ड राइट टू वर्क। इकोनॉमिक्स में चली गई मैं आपको, लेकिन चीजें क्लियर करनी जरूरी थी। सो दिस इज कॉल्ड राइट टू वर्क। अगर वर्क नहीं मिलता, आपका राइट है वर्क लेना, देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो अब ये उस टाइम पर ऐसा हो गया जब पेरिस में गड़बड़ हो गई थी। चलो कंटिन्यू बेटा। अभिजोत, हाँ जी। National workshops to provide employment were set up. हाँ, फिर वर्कशॉप्स बनी, जिन जिनको काम चाहिए वहां पर काम दिया जाने लगा। Earlier in 1845, स्टॉप। अब यहाँ तक मार्क कर लो, सेटअप तक डेट डालो आज की, बस इतना ही पढ़ना है, एंड टुमारो वी विल रीड फर्दर। क्योंकि 1830s वाले ईयर बहुत खराब थे, 1848 वाला उससे खराब था, और जो उससे आगे पढ़ना है सिलीशिया, वो और ज्यादा खराब है। नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड। तो इतना सब कुछ खराब एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड दैट। अब आपने 2 क्वेश्चन करे हैं, लैंग्वेज वाला और ये 1830s वाला, ये यहीं से बुक से ही लर्न करोगे, ठीक है? चलो, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। पलक, अनम्यूट योरसेल्फ। तुझे बहुत जल्दी पड़ी है जाने की, पहले बाय बाय कर दी है, हैं? Bye, ma'am. चलो ठीक है, ओके, बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।